So friends, welcome to my YouTube channel, and today I am bringing to you not only the review of this Marq 566 liters side by side door refrigerator, but this is a long term review of this refrigerator. Yes, so I have been using this refrigerator for past 18 months now. So I thought of creating a video and talking about the pros and the cons. Majority pros, yes, because this has been an outstanding refrigerator. I have not faced any issues with this, and from the cooling point of view as well, it's serving me very well. So as you can see, it's a side by side door refrigerator. Towards the very left you will see the door on the side for the ice and the freezer, and towards the right hand side where you can see the water dispenser, this is the area where you see the fridge side of this refrigerator, where you can keep all those stuff like milk, the vegetables, the fruits, to ensure that your things are not getting spoiled. And as per my experience with this refrigerator, because when I bought this refrigerator back in 2020 February, Marq was something which I was not aware of. So that was and still it is a brand exclusive to Flipkart. So I took a risk and I bought this refrigerator, 566 liters refrigerator, and at that point of time it cost me somewhere around 48,000 rupees, but I did get some bank discount as well, so it cost me around 45,000 rupees. But yes, it was a risk to me, because when I bought this refrigerator, Marq was something which I was not even aware of. So as you can see, let's talk about the physical, or what we can see of this refrigerator. So as you can see, this refrigerator is completely the front of this refrigerator is completely made of glass. So it's a tougher glass, as the company calls itself, and indeed yes, it's a tougher glass as well, because there have been instances when the fridge was hit by a table or by the chair as well, but still there is not even a single scratch on this glass. So yes, I would agree with the company that yes, it's made of a tougher glass, and that's not dust resistant, but you won't see that much dust on this refrigerator. So let's say in couple of weeks or once in 10 days you will feel the need to clean this TV. तो आप इसको ज़्यादा इस पर आपको टाइम नहीं देना पड़ेगा क्लीनिंग के लिए. आई थिंक 2 हफ्ता में एक बार या 10 दिन में एक बार आप इसको क्लीन कर सकते हैं, इस रेफ्रिजरेटर को. तो ये एक ग्लास का फ्रंट है जो कि आपको दिखता है. Marq की ब्रांडिंग है राइट साइड पे, और एक वाटर डिस्पेंसर का फीचर भी दिया गया है इसमें. और द गुड थिंग इज़, ये जो डिस्पेंसर का फीचर है, इट कम्स विथ अ लॉक. तो अगर आपके घर में बच्चे हैं और या आप इसको लॉक करके रखना चाहते हैं, स्पेशली सर्दियों में, आप इस पर लॉक अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से. जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसको लॉक कर दिया है, और इसको खोलना हो तो उसको वापस वो कर दें और ये इसका जो वाटर है वो निकल जाएगा. सो दैट्स अ गुड फीचर ऑफ दिस स्पेसिफिक रेफ्रिजरेटर, कि यहाँ पे आप जो है ये लॉक अप्लाई कर सकते हैं. अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो बेशक आप इसको लॉक कर दें, और जो वाटर डिस्पेंसर का जो आपका ये फीचर है, ये और लॉक हो जाएगा. आप ये देख सकते हैं कि ये पूरी फिनिश ग्लास की है. यहाँ पे इट्स कम्प्लीटली मेड ऑफ ग्लास. Marq की ब्रांडिंग है यहाँ पे, टफर ग्लास है. और व्हेन आई मूव टूवर्ड्स द लेफ़्ट, अगर हम लेफ़्ट साइड की तरफ देखें तो ये इसका पैनल है. तो ये एक टच कंट्रोल पैनल है जिसमें बहुत ही बेहतरीन सुविधाएं दी गई हैं यहाँ पे. इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है विच इज़ कॉल्ड दी हॉलीडे फीचर. द मोमेंट यू आर नॉट यूजिंग दिस रेफ्रिजरेटर, और लेट्स से अगर आपको कहीं बाहर जाना है छुट्टियों पे, या आप अपने घर से बाहर हैं कुछ हफ्ता 10 दिन और 15 दिन के लिए, ये रेफ्रिजरेटर अगर आप इसको हॉलीडे फंक्शन में कन्वर्ट करके जाएंगे, लेट मी शो यू हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस रेफ्रिजरेटर एंड वी कैन यूज़ दी हॉलीडे फीचर. पहले सबसे पहले हम इसको यहाँ से अनलॉक करेंगे, और जैसे ही ये अनलॉक हो जाएगा, यहाँ पे हमें मोड का ऑप्शन दिखता है. हम इसको प्रेस करेंगे, ये वाला जो ये लास्ट वाला फीचर हमें दिखता है, ये हॉलीडे फीचर है बेसिकली. अगर आप इसको नॉर्मल फीचर पे रखना चाहते हो, आप इसको ये वाले फीचर पे ले आओ. इस वाले फीचर की फ़िलहाल मुझे इतनी जानकारी नहीं है, बट एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग दिस इज़ एन ऑटोमेटिक फीचर. सो व्हेन आई से ऑटोमेटिक, बेसिस आपका जो इन्वायरमेंट है, जो आपका क्या नाम है, गर्मी है या सर्दी है या ह्यूमिडिटी का मौसम है,
उसके अकॉर्डिंग इट्स गोइंग टू टर्न इटसेल्फ, अपने आप को ये ऑटोमेटिकली सेट कर देगा। अगर आपको सबसे पहले ऑप्शन पे आप रखते हो, आप इसको ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर सकते हो यहाँ से इसके टेम्परेचर को। तो फ्रिज को अगर जब आप प्रेस करेंगे तो आप इसके फ्रिज के टेम्परेचर को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे कि मैं करके देख रहा हूँ यहाँ पे। और जब आप फ्रीज़र के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो फ्रीज़र के ऑप्शन को आप अपने हिसाब से जो है आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैं इसको 18 पे था तो मैं इसको वापस 18 पे लेके आता हूँ। ठीक है जी। सो ये एक टच पैनल है, एक कंट्रोल पैनल है। इट्स बीन 18 मंथ्स नाउ। 18 मंथ्स में मुझे आज तक कोई भी एक इशू नहीं हुआ इस रेफ्रिजरेटर के टच पैनल से भी। यहाँ पे जब हम इसके कुछ फीचर्स की बात करते हैं तो as I mentioned before in the video, it's a premium glass design. It has the in the door water dispenser which I just talked about, जिसमें कि एक लॉक फंक्शन भी दिया गया है जिसको आप अपनी सुविधा के अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं। हॉलीडे फंक्शन जो है बहुत ही स्मार्ट फंक्शन है इस रेफ्रिजरेटर का, जो कम से कम 40% आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको वो सेव करता है। अगर आप लेट्स से कहीं पे छुट्टियों पे हैं या घर से बाहर हैं 10, 15, 30 दिन के लिए, आप इसको हॉलीडे मोड पे कन्वर्ट कर दें और ये जो है अपने आप को नॉट ओनली इट विल रेगुलेट इटसेल्फ बट इट्स गोइंग टू सेव द इलेक्ट्रिसिटी एज वेल। इंटेलिजेंट एलईडी टच कंट्रोल पैनल है जो कि हमने अभी देखा। अल्ट्रा क्वाइट ऑपरेशन। सो येस, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दिस फीचर। इस रेफ्रिजरेटर में कोई भी नॉइज़ नहीं है। इससे पहले मैं सैमसंग का डबल डोर रेफ्रिजरेटर यूज़ किया था मैंने, जो कि मैंने कुछ 3-4 साल तक यूज़ किया, 3 या 4 साल के यूज़ किया। 2018, 19 और 20 तक मैंने उसको यूज़ किया और वो काफ़ी नॉइज़ी था। इट वाज अ स्मार्ट इन्वर्टर डबल डोर रेफ्रिजरेटर 253 लीटर्स, जो कि मैं सैमसंग का यूज़ करता था। नॉइज़ उसमें भी आता था बट एज यू कैन योर सेल्फ हियर, इस रेफ्रिजरेटर में ज़रा सी भी नॉइज़ नहीं है। बिल्कुल स्टेडी काम करता है, बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं है। एंड येस, आई कम्प्लीटली एग्री टू दैट। लॉन्ग लास्टिंग फ्रेशनेस। इसमें सब्जियां हम 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता भी रखते हैं और इसमें कोई भी फ्रेशनेस में इसका जो है वो इशू नहीं आता। एक्सप्रेस फ्रीज़ का ऑप्शन ये देता है। इसके अंदर मल्टीपल फैंस भी हैं जो कि इसकी जो एयर है उसको रेगुलेट करते हैं। तो ये था एक फ़िज़िकल ओवरव्यू इस रेफ्रिजरेटर का। ये इसका साइड है जो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये भी कम्प्लीटली ब्लैक कलर में है। इस तरफ ग्लास नहीं है, इस तरफ इसका जो मेटालिक फ्रेम होता है वो है। इस तरफ कोई ग्लास नहीं है, ना ही दूसरी तरफ आपको कोई ग्लास देखने को मिलेगा। तो ये था इसका एक फ़िज़िकल ओवरव्यू। लेट मी शो यू दिस रेफ्रिजरेटर फ्रॉम द इनसाइड। तो ये है हमारा जो है ये फ्रीज़र वाला साइड है। इसमें कि आप देख रहे हैं कि इसमें कितने सारे जो हमें ऑप्शंस, ट्रेस के ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ, इसके जो डिफरेंट जो खांचे हम कहते हैं इनको, यहाँ पे हम बॉटल्स रख सकते हैं फॉर अ क्विक फ्रीज़। बियर बॉटल्स इन केस अगर कोई कंज्यूम करता है, बेवरेज नॉन अल्कोहलिक आई एम टॉकिंग अबाउट। ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू यूटिलाइज दी स्पेसिफिक सेक्शंस और ये बहुत ही जल्दी, बहुत ही क्विकली उसको ठंडा करता है। आप अपने हिसाब से टेम्परेचर को सेट भी कर सकते हैं और अपने मुताबिक उसको ठंडा ज़्यादा या गर्म भी कर सकते हैं। इसके साथ ये जो ट्रे है बर्फ़ की ये आती है। अपार्ट फ्रॉम दिस दूसरी ट्रेज़ आपको खुद ख़रीदनी पड़ेंगी इसकी। ये डिफरेंट सेक्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे हम जो है अपना ये 2 सेक्शंस हैं नीचे जहाँ पे हम अपना कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन एज वेल। तो ये था इसका जो फ्रीज़र वाला सेक्शन है। लेट मी शो यू दी अदर सेक्शन विच इज़ कॉल्ड दी फ्रिज सेक्शन। सो यहाँ पे एज वी कैन सी हमारे पास ये डिफरेंट खाने हैं, डिफरेंट सेक्शंस हैं। ये सबसे पहली ट्रे है जो हमें मिलती है, ये भी साथ में दिया जाता है, जो इसके साथ ही आता है। हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं एज़ पर आवर ओन रिक्वायरमेंट। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने अपने हिसाब से इसको यूज़ किया है। नीचे 2 बास्केट दी गई हैं, एक बास्केट फ्रूट के लिए है और एक बास्केट वेजिटेबल्स के लिए है, जो कि आप अपने हिसाब से इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बास्केट्स का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि कम है या ज़्यादा है, ठीक है, अच्छा है, बेटर है। नीचे वाली बास्केट का साइज़ भी अच्छा है। फ्रीज़र वाली बास्केट का साइज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी अच्छा है, स्पेशियस है काफ़ी, 5-6 लीटर्स का है। डिफरेंट सेक्शंस हैं। लेट्स सी दी साइड ऑफ द फ्रिज। ये ऊपर वाला सेक्शन बेसिकली
हम यहाँ पे कुछ भी स्टोर कर सकते हैं एज़ पर आवर ओन रिक्वायरमेंट। एग्स भी होते हैं, एग्स भी हम स्टोर कर सकते हैं, कुछ और चीज़ें भी हम स्टोर कर सकते हैं। ये बॉटल्स का सेक्शन है, आप देख रहे हैं। ये वाटर टैंक है उस डिस्पेंसर का जो कि आपको फिल करना पड़ता है, और ये दूसरी साइड्स हैं। बॉटल्स के लिए बेसिकली ये 2 साइड्स दे रखी हैं। अभी हमें इतनी ज़रूरत नहीं है तो हमने एक साइड यूज़ की है, दूसरी साइड में हम सामान रखते हैं। बट एज़ पर योर ओन नीड यू कैन सिंपली कस्टमाइज दीज सेक्शंस। तो ये था मेरा एक ओवरव्यू इस मार्क्यू के 566 लीटर्स साइड बाई साइड डोर फ्रिज का। फॉर पास्ट 18 मंथ्स मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और मुझे एक बार भी इस पर तकलीफ़ नहीं आई है। बहुत ही अमेजिंगली ये काम कर रहा है। कूलिंग इज़ आउटस्टैंडिंग। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी इतनी ज़्यादा नहीं है इसकी। 1 साल की वारंटी मिलती है जब आप फ्लिपकार्ट से इसको परचेज़ करते हैं। व्हेन आई लास्ट चेक्ड आई बिलीव दिस रेफ्रिजरेटर वाज आउट ऑफ स्टॉक। आई एम नॉट श्योर वेदर इट्स स्टिल it is available or not, but when I last checked it it's out of stock. Apart from this black color, एक ये सिल्वर कलर में भी आता है जो कि आप देख सकते हैं। डस्ट रेजिस्टेंट तो नहीं है बट इतनी डस्ट नहीं पकड़ता है ये। 10 दिन या 2 हफ्ते में एक बार आप उसको क्लीन कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हफ्ते में एक बार भी कर सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। बट इतना डस्टी नहीं होता ये। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि आप इसे कहाँ स्टोर करते हैं, कहाँ पे इसको आप रखते हैं। सिल्वर कलर का एक आता है और एक ये ब्लैक कलर में आता है। अपार्ट फ्रॉम दिस इसका जो आउटर ग्लास है काफ़ी टफ़ है, कोई स्क्रैच नहीं आया उसमें अभी तक तो फ़िलहाल 18 मंथ्स में। बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है ये, बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑपरेशनल है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है मेरे को इस रेफ्रिजरेटर में। आप देख सकते हैं कि हमने सामान वगैरह सब कुछ रखा हुआ है यहाँ पे। काफ़ी जल्दी ठंडा करता है और चीज़ों को भी फ्रेश रखता है। और आई बिलीव इफ़ आई लुक एट दी कॉस्ट, आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त है ये रेफ्रिजरेटर, जस्टिफाई करता है अपने कॉस्ट को और अपनी परफॉर्मेंस को। एंड 566 लीटर का है, ऑलमोस्ट 6 फुट लंबा फ्रिज है ये, आप देख सकते हैं। इट डज़ हैव दी हाइट एज वेल। तो मेरे हिसाब से आई विल गिव अ बिग थम्स अप। आई थॉट ऑफ शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विथ यू गाइज बिकॉज इट्स बीन 18 months using this refrigerator and it's been outstanding 18 months. I haven't faced a single concern from my end. I had the 1 year warranty, though I extended the warranty. I bought extra 2 years warranty जो कि मैंने कुछ अराउंड 2600-2700 रुपये पे किए थे, और मैंने 2 साल की वारंटी जो है परचेज़ किया था इस फ्रिज के लिए। तो इन टोटल ये 3 साल की वारंटी के अंडर है, बट एज ऑफ नाउ कोई प्रॉब्लम नहीं दी है मुझे। 566 लीटर के मॉडल के अलावा मार्क्यू के कुछ 460 या 423 लीटर्स के मॉडल भी आते हैं, या 543 लीटर्स का मॉडल भी आता है। You can also look at them. They are the latest models basically, and I am very much sure that from the functionality perspective they would be awesome. क्योंकि 566 लीटर्स के इस फ्रिज में मुझे अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। तो मेरी तरफ से आई एम गोइंग टू रिकमेंड दिस फ्रिज बिकॉज आई बीन यूजिंग इट फॉर 18 months. And as you can see, as you can listen to that beep, because the door is open, so it gives me the beep, it gives me the alarm that yes, the door is open. तो in case अगर आप गलती से डोर खुला रख देते हैं तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली बीप करता है, आपको बता देता है कि आपकी जो फ्रिज है कोई ना कोई एक डोर आपका ओपन है। So guys, that's all from my end. Thank you and have a nice day.